थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਪਲੇਸ ਤੇ ਹਾਂ। Thank you, Lord Jesus. Hallelujah, 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 hallelujah. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਚਰਚ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਚਰਚ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਨੈਕਟ ਹੋ ਜਾਓ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਸ ਲਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਸਾਡੇ ਆਤਮਿਕ ਪਿਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੈਸੇਜ ਦਊਗੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਵਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਜੁੜਦੇ ਜਾਓ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਜਿਹਨੀ ਚਰਚ ਟੀਮ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੈ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਇਹ ਚਰਚ ਦੀ ਪਲੇਸ ਆ ਸਾਰੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਜਾਓ। ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਲਦੀ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਚਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਸ ਲਾਈਵ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀਸਸ। ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ। ਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਰਕ ਜੋ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ। ਚਰਚ ਪਲੇਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵਾ। Hallelujah, praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus। ਚਰਚ ਦਾ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਰਕ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ।
परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਇਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया हालेलुया। ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦ ਲਾਰਡ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। मेरा बिलीव है कि आप सब जन आज ब्लेस्ड होंगे यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में। तो जैसे आप सबको मालूम है कि चर्च भवन में कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो चल रहा है। कंस्ट्रक्शन का काम जो है वो शुरू है, परमेश्वर के भवन निर्माण का काम जो है वो हो रहा है। सो आप सब जन जो आज हम चर्च भवन में ही हैं, खुदावंद की उपस्थिति में, जहाँ संडे चर्च लगता है, वो प्लेस, वो अनॉइंटेड जगह, वो अनॉइंटेड प्लेस जहाँ परमेश्वर का आत्मा जुम्बश करता है लोगों के बीच में, लोगों को छूता और छुड़ाता है। तो कलीसिया जब परमेश्वर का भवन बन रहा होता है तो ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है हमारे लिए कि हम परमेश्वर के भवन को तैयार करें या उसकी नींव को देखे बनता हुआ यीशु मसीह के नाम में। जैसे पवित्र कलाम में भी लिखा है कि परमेश्वर का घर सब जातियों के लिए, सब देशों के लिए प्रार्थना का घर ठहरेगा। सचमुच जब परमेश्वर के भवन में आकर प्रभु से आशीष और बरकत को पाता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो कलीसिया परमेश्वर के भवन निर्माण का काम चल रहा है। खुदावन के भवन निर्माण का कार्य जो है वो हो रहा है बड़ी तेजी के साथ, ताकि परमेश्वर का किंगडम, परमेश्वर का राज्य जो है वो तेजी से फैल सके अपने लोगों के बीच में। हजारों रूहें जो हैं वो बचाई जा सकें यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए प्रभु के राज्य को बढ़ाने के लिए, परमेश्वर की महिमा के लिए आज ये परमेश्वर का भवन जो है वो तैयार हो रहा है, बन रहा है। जैसे आपको पहले भी दिखाया गया। और देखें कलीसिया बाउंड्री का काम जो है, शेड का काम जो है वो शुरू है। चर्च भवन में काम चल रहा है, सब परमेश्वर की महिमा के लिए। सो देखे आप सब जन, तो पवित्र आत्मा ने मेरे मन में डाला कि मैं आप सबको परमेश्वर के इन कामों के बारे में दिखाऊं, ताकि आप लोग भी ब्लेस्ड हो सको यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। तो यहाँ पर पुलपट बनने के लिए जा रहा है, वेदी बनने के लिए जा रही है परमेश्वर की, जहाँ पर परमेश्वर की आराधना करेंगे वर्शिपर्स, प्रीचिंग होगी। तो ये उसकी पीछे की वॉल जो है वो खड़ी की जा रही है, और आगे यहाँ पर उसके बाद पुलपट बनेगा जहाँ पर ये बाकी की ईंटें पड़ी हैं। रूम्स रेडी होंगे, सब कुछ रेडी होगा परमेश्वर की महिमा के लिए। इधर से रूम रेडी होगा और उधर साउंड रूम होंगे, प्रेयर रूम्स होंगे, सारा कुछ परमेश्वर की महिमा के लिए रेडी किया जाएगा, ताकि अगर कोई आए प्रार्थना करने के लिए, रहने के लिए, कोई दूर से आए, कोई अदर सिटी, अदर स्टेट से आए, तो उसको किसी भी तरीके की जो है वो दिक्कत ना आए। वो आराम से, चाहे 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, 1 महीना, जितनी देर मर्जी अपने पिता के घर में आराम से रहने पाए। सो कलीसिया इसलिए परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई से अब कंस्ट्रक्शन के काम जो है वो चर्च में चल रहे हैं। हालेलुया। जैसे आपने देखा कि नहेमिया के समय में भी परमेश्वर के घर की नींव डाली गई। एजरा, नहेमिया, सुलेमान के समय में भी परमेश्वर के घर का निर्माण किया गया। और जब परमेश्वर का घर का निर्माण एक जगह पर होता है, जब एक नींव की स्थापना होती है भवन निर्माण की, तो वहाँ उस एरिए, उस देश, उससे नगर, उस शहर में से वो शैतान की सब वो जो वेदियां हैं, जो गढ़ हैं, वो ढा दिए जाते हैं। सो ये एक बहुत अच्छा एक मौका है कि परमेश्वर का भवन जो है वो बन रहा है, परमेश्वर का भवन जो है वो तैयार हो रहा है। और जब ये भवन तैयार हो जाएगा, जब पूरा पुलपिट रेडी होगा, शेड रेडी होगी, सारा कुछ
जो परमेश्वर की महिमा के लिए है, किसी इंसान की महिमा के लिए नहीं। जब सारा कुछ रेडी होगा और आप लोग आएंगे चर्च में, आप देखेंगे, चर्च भवन में आएंगे, परमेश्वर की महिमा को देखेंगे, वर्शिप को एंजॉय करेंगे, तो परमेश्वर आपकी लाइफ में अद्भुत रीति से काम करेगा और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो कलीसिया ये सारी चर्च की जमीन है। जैसे उधर काम चल रहा है, ये जहाँ से ये शुरू है और वहाँ वो लास्ट तक जहाँ वो भाई येलो शर्ट डालकर है, तो ये शेड बना है, लेकिन अब इसको हम तोड़ देंगे और इधर तक सारी जमीन चर्च भवन की है। जैसे आप सबको मालूम है, आप में से बहुत से चर्च के मेंबर्स भी हैं जो देख रहे हैं, तो ये सारी जगह परमेश्वर ने हमें दी है चर्च की, अपनी महिमा के लिए, अपनी प्रस्तिश के लिए। और अब खुदा ने ये मेरे मन में डाला कि हम इस इसका नाम है, भवन को, इस जगह को हम बनाएं, परमेश्वर के घर को हम तैयार करें। और आज से कल से वो सारा काम परमेश्वर के भवन का जो है वो शुरू है और परमेश्वर की महिमा के लिए मेरा बिलीव है सारे काम कंप्लीट होंगे। सो आप सब जन चर्च भवन के लिए प्रार्थना करें और खुदावन के कामों में आगे बढ़ें, परमेश्वर की महिमा के कामों के लिए आगे बढ़ें। जब हम बाइबल में देखें तो दाऊद राजा जो था, उसने परमेश्वर के भवन बनाने की इच्छा अपने मन में उसके जागी कि मैं परमेश्वर के भवन को बनाऊंगा, लेकिन परमेश्वर ने बोला नहीं, तूने बहुतों का लहू अपनी तलवार से बहाया है, इसलिए तू नहीं बल्कि तेरा निज पुत्र तेरे मेरे भवन को तैयार करेगा। तो बाइबल में लिखा कि जब राजा को यह मालूम हो गया कि परमेश्वर ने मुझे भवन बनाने से मना किया और मेरे पुत्र को चुना है भवन बनाने के लिए, तो बाइबल में लिखा कि राजा चुप करके नहीं बैठा। राजा ने अपनी कलीसिया में ये अनाउंस कर दिया अपने लोगों में कि परमेश्वर का भवन बनने वाला है, तुम जो तुमसे बनता है परमेश्वर के कामों के लिए वो करो। तो बहुत से लोगों ने अपना सोना चांदी, अपना पैसा परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए दिया, ताकि परमेश्वर का काम जो है वो तेजी से, स्पीड से, परमेश्वर का भवन जिसकी महिमा, जिसका जलाल से शैतान डरता है, क्योंकि जब परमेश्वर के भवन की स्थापना होती है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि शैतान के गढ़ जो है वो फिनिश हो जाते हैं, शैतान के काम जो है वो नाश हो जाते हैं। हालेलुया। सो तब लोगों ने अपना मन खोला परमेश्वर के कामों के लिए और भवन के लिए उन्होंने अपना सोना चांदी दिया, सब कुछ दिया। और जब राजा सुलेमान जो था वो राज करने लगा, फिर उसने परमेश्वर यहोवा के भवन को बनाया। इतना खूबसूरत भवन परमेश्वर का तब बनने पाया। परमेश्वर ने अपने लिए बुद्धिमान लोगों को चुना, जिनसे परमेश्वर ने अपनी सेवा करवाई। लक्कड़ के काम के लिए अलग को, चिनाई के लिए अलग को, सोने की जो भी चीजें वहां पर तैयार हुई, परमेश्वर ने उनका चुनाव किया लोगों का और उनको ठहराया कि ये लोग मेरे भवन को बनाए। हालेलुया। तो जैसे आपको पहले भी मालूम होगा जितने आप क्रिश्चियन है कि परमेश्वर लोगों को चुनता है अपनी सेवा के लिए, अपने कामों के लिए। तो आज भी परमेश्वर ने ये मेरे मन में डाला कि मैं आपको बताऊं कि परमेश्वर का भवन जो है वो तैयार हो रहा है, ताकि परमेश्वर आपसे बात करे। परमेश्वर जिन लोगों को चुनना चाहता है अपनी महिमा के लिए, कामों के लिए, वो उनसे बात करे, उनको मालूम हो जाए कि परमेश्वर का भवन जो है वो तैयार हो रहा है। आप देखें प्रेरितों के समय में भी जब परमेश्वर का काम बढ़ रहा था, परमेश्वर का काम तेजी से, स्पीड से चल रहा था, तो मैं पढ़ रहा था कल परसों, तो वहां पर लिखा कि कलीसिया इतनी उत्साहित कलीसिया थी परमेश्वर के कामों को लेकर। कलीसिया इतनी उत्साह रखती थी, इतना जोश था उनका परमेश्वर के कामों के प्रति, सुसमाचार के प्रति, परमेश्वर के किंगडम को बनाने के प्रति, कि बाइबल में लिखा कि कलीसिया अपना सारा कुछ बेच कर प्रेरितों के पैरों के ऊपर रख देती थी, प्रेरितों के कदमों पर रख देती थी कलीसिया, और उस पैसे से प्रेरित परमेश्वर के काम को करते थे और परमेश्वर की सामर्थ्य से बड़े बड़े काम होते थे। लेकिन बाइबल में एक और बहुत अच्छी और एक बहुत बढ़िया बात, एक सामर्थी बात निकली कि उन्होंने अपना सारा कुछ बेच कर परमेश्वर के कामों के लिए दे दिया। लेकिन वहां पर लिखा था कि फिर भी उनमें से एक भी दरिद्र, गरीब नहीं था, वो सब आशीषित थे। क्योंकि जब कलीसिया आप परमेश्वर के लिए करते हैं, जैसे परमेश्वर के कलाम में लिखा कि जैसा तू बोएगा वैसा तू काटेगा, जैसा तू बोएगा वैसा तू फल अपने जीवन में लेगा, है ना। तो
वो क्यों वो दरिद्र नहीं बने सारा कुछ बेचने के बावजूद? क्योंकि अगर आप परमेश्वर के राज्य में कुछ बोते हैं, कुछ करते हैं परमेश्वर के राज्य में, तो प्रभु वो आपको डबल करके वापस देता है और आप सेम नहीं रहते। इसलिए वो कलीसिया जो थी वो दरिद्र नहीं थी, वो एक आशीषित कलीसिया थी। हालेलुया। तो कलीसिया अब भी जो है, जितने आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं, परमेश्वर के कामों को करने का टाइम है। परमेश्वर का भवन जो निर्माण हो रहा है उसको बढ़ाने का, तेजी से स्पीड से होने का टाइम है। सो आप सब जन बोझ रखें परमेश्वर के कामों का, जैसे प्रेरितों के समय में कलीसिया रखती थी बोझ, और प्रभु का काम जो है वो स्पीड से होता था। आप सब जन बोझ रखें प्रभु के कामों का, और आप सब जन खड़े हों परमेश्वर के कामों के लिए। ये वॉल जो अभी इसकी नींव भरी गई है, ये कम से कम 25-30 फीट ऊंची जाएगी ऊपर को, और उसके बाद शेड का काम चर्च भवन में शुरू कर देंगे। क्योंकि मेरे आत्मिक पिता जी के द्वारा ये हमें मैसेज मिला है कि हम शेड का काम शुरू करें। और मैं हमेशा ये बिलीव करता हूँ कि अगर फादर ने बोल दिया अपने मुंह से किसी काम के लिए, तो मैं हमेशा ये बिलीव करके रखता हूँ कि वो डन हो चुका है, वो कंप्लीट हो चुका है यीशु मसीह के नाम में। तो आप सब जन भी, जितने आप मुझे देख रहे हैं, जरूर प्रभु के कामों के लिए, परमेश्वर के किंगडम के लिए, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े हों, ताकि परमेश्वर का राज्य और उसकी महिमा जो है वो होने पाए यीशु मसीह के पवित्र और जलाली सामर्थी नाम में। और मेरा बिलीव है कि जब आप खड़े होंगे परमेश्वर के किंगडम के लिए, आप खड़े होंगे परमेश्वर के राज्य के लिए, आप खड़े होंगे परमेश्वर की महिमा के लिए, तो परमेश्वर आपको सेम नहीं रहने देगा। वो आपको ऊंचा करेगा, आपको आशीषित करेगा। गुड न्यूज आपकी लाइफ का हिस्सा होगी, टेस्टमनीज आपकी लाइफ का हिस्सा होगी, गवाहियां आपके लाइफ का हिस्सा होगी, और आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में। परमेश्वर का आत्मा आपको ऊंचा करेगा। जैसे उसने प्रेरितों की कलीसिया में दरिद्रगी नहीं रखी, उनको आशीषित किया, वैसे ही आप भी जितने परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, करेंगे, परमेश्वर आपको भी सेम नहीं रहने देगा। तो ये जहां से बाउंड्री, ये जो आपको सरिये दिख रहे हैं, यहाँ 25 फीट ऊंची जो है वॉल खड़ी होगी, और उसके साथ एक साइड पर प्रार्थना वाले रूम्स बनेंगे, साउंड रूम्स बनेंगे, मीडिया रूम्स बनेंगे। सो सारा काम जो है वो शुरू होगा। ये सारी जमीन परमेश्वर ने हमें दी है खुदा के कामों के लिए, किंगडम के लिए, डिवाइन रास्ता खोलकर। तो ये पीछे तक है, ये शेड है जहां अभी चर्च कर रहे हैं हम। ये मिली थी, अब इसको उठा देंगे क्योंकि शेड ये सारा टूट चुका है। और अब हम नए सिरे से जो है वो काम को शुरू करेंगे यीशु मसीह के पवित्र और जलाली नाम में। सो आप जितने भी हैं, आप सब जन जरूर प्रभु के कामों के लिए खड़े हों, जो परमेश्वर का किंगडम, परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर की महिमा के लिए जो भवन निर्माण हो रहा है परमेश्वर के कामों में, आप जरूर अपना योगदान दें, आप जरूर अपने हाथ को बढ़ाएं, आप जरूर परमेश्वर के कामों के लिए खड़े हों, ताकि परमेश्वर का किंगडम जो है वो फैले, परमेश्वर का राज्य जो है वो फैले, परमेश्वर की महिमा जो है वो होने पाए, और यीशु मसीह का नाम ऊंचा उठे और शैतान शर्मिंदा होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरा ये बिलीव है कि आज आप जितने देखने वाले हैं, आप सब जन ब्लेस्ड हैं यीशु मसीह के नाम में। जितने फेसबुक मेंबर्स हैं मिनिस्ट्री के, आप ब्लेस्ड हैं। मेरा बिलीव है यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में आप आशीषित हैं, और प्रभु आपको और आशीषित करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो कलीसिया जरूर प्रभु के कामों के लिए खड़े हों। आज ये कंप्लीट हो चुकी है, नींव का काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। फाउंडेशंस जो है वो पीछे की वॉल की बन चुकी है। सो जरूर सब खड़े हों प्रभु के कामों के लिए। मेरा बिलीव है आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा, जैसे जैसे चर्च का काम हो रहा है वैसी वैसी सारी अपडेट्स मैं आप तक पहुंचाता जाऊंगा। और जरूर अगर आप कहीं से भी देख रहे हैं, आप चर्च भवन में इनवाइटेड हैं, आप आए चर्च भवन में, परमेश्वर के कामों को देखें, परमेश्वर के किंगडम को, परमेश्वर के राज्य को। हालेलुया। जैसे हम खुदावंद के बड़े कामों को संडे देखते हैं, आप इनवाइटेड है संडे चर्च में। अनॉइंटिंग ऑयल मीटिंग है, स्पेशल सीड मीटिंग है। आप सब जन अपने बेस्ट सीड्स के साथ परमेश्वर के घर में आए। हालेलुया। और मेरा बिलीव है जो ऑयल आपको दिया जाएगा उसके द्वारा आप ब्लेस होंगे। तो कलीसिया, गॉड ब्लेस यू। मेरा बिलीव है आप सब खड़े होंगे खुदा के कामों के लिए। प्रेरितों वाली कलीसिया बनेंगे आप, और परमेश्वर का किंगडम फैलने पाएगा।
ये फाउंडेशंस रेडी हैं वॉल्स की, और जल्दी ही एक सुंदर शेड और क्या इसका नाम है, एक अच्छी रूम्स, प्रार्थना के रूम्स, रहने के लिए रूम्स आपके लिए चर्च में बना दिए जाएंगे। जितने राजस्थान, पंजाब के किसी भी एरिया से, इंडिया के किसी भी एरिया से, जैसे बहुत से लोग आते हैं, दिल्ली, राजस्थान, यूपी, कहीं से भी आप आते हैं, तो आपके लिए, सबके लिए रूम्स रेडी हो रहे हैं चर्च भवन में। जल्दी हम उन सब कामों को रेडी कर देंगे कि आप कभी भी आए चर्च भवन में, जितने मर्जी दिन रहें, प्रार्थना करें, एवरी टाइम आपको चर्च भवन में रहने के लिए खाने का इंतजाम मिलेगा। हालेलुया। तो बहुत जल्द परमेश्वर इन सब चीजों को कंप्लीट करने वाला है। सो गॉड ब्लेस यू कलीसिया। आप सब जन जरूर खुदा के किंगडम के लिए, राज्य के लिए खड़े हों, बोझ के साथ परमेश्वर के कामों को करने के लिए खड़े हों, परमेश्वर की महिमा के लिए आप सब जन खड़े हों, ताकि परमेश्वर का किंगडम जो है वो फैले। और मेरा बिलीव है आप सेम नहीं रहेंगे यीशु के नाम में। और इस जो काम शुरू हुआ है चर्च भवन का, आप याद रखें इसको प्रार्थनाओं में। अभी हम सिर्फ पुलपिट रेडी करेंगे और उसके बाद साथ में हम रूम्स की, प्रेयर रूम्स जो बनेंगे यहाँ पर, जहाँ टीम बैठकर प्रार्थना करेगी 24-24 घंटे, 12-12 घंटे। आपको बताया जाएगा जब प्रार्थनाएं होंगी। प्रेयर टावर्स बनेंगे आपके लिए, जितने लोग हमें देखते हैं। हालेलुया। सो आप सेम नहीं रहेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अभी भी आप जितने लोग हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, मेरा बिलीव है कि आप जो प्रेजेंस परमेश्वर के भवन में है, वो प्रेजेंस आज आपके जीवन में जाएगी और आप गुड न्यूज को रिसीव करेंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, और बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज आपकी लाइफ का हिस्सा होगी। सो प्रेरितों वाली कलीसिया बनना है आप सब ने। प्रेरितों वाली कलीसिया बनकर आप सब ने खुदा के कामों के लिए, किंगडम के लिए खड़े होना है, परमेश्वर के राज्य के लिए खड़े होना है, ताकि परमेश्वर का काम होने पाए। सो कलीसिया, गॉड ब्लेस यू सबको। जितने ऑनलाइन मेंबर्स हैं, हमारे कलीसिया मेंबर्स हैं, जो हमें देख रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, ये अचानक से लाइव परमेश्वर ने मेरे मन में डाला। मैं चर्च भवन में ही था, अंदर हॉल में। परमेश्वर ने मुझे बोला कि मैं लाइव करूं, और मेरा बिलीव है कि आप ब्लेस होंगे इसके द्वारा। सो जितने आप ऑनलाइन देख रहे हैं, हम प्रार्थना करते हैं। छोटी सी चर्च भवन में मैं हूं, और यहाँ की ग्रेस जो है वो अद्भुत है परमेश्वर की महिमा के लिए। ये हॉल है, लेकिन जगह मैंने आपको बताया कि ये हॉल से भी पार है जगह आगे तक हमारी। सो अब हम प्रार्थना में चलते हैं। छोटे से जितने जन आप देख रहे हैं, अपनी आंखों को बंद करके खुदा की उपस्थिति में रहेंगे। लॉर्ड जीसस, खुदाबंद प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे पिता, आज जितने लोग खुदाबंद हमें ऑनलाइन वॉच कर रहे हैं, परमेश्वर खुदाबंद फेसबुक के जरिए जुड़े हैं, मेरे परमेश्वर खुदा, मैं आपका दास होने के नाते प्रार्थना करता हूँ इन सब के लिए जो ग्रेस आपके भवन में, इस अनॉइंटेड प्लेस के ऊपर मौजूद है। इन सब के जीवनों में अद्भुत रीति से काम करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा, जितने ऑनलाइन व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, इन सब को टच करें, इनके परिवारों को, इनके घरों को, हर एक बाउंडेशंस जो डेविल ने इनकी लाइफ में डाली हैं, यीशु के नाम में वो सारी बाउंडेशंस टूट जाएं। परमेश्वर का आत्मा जुम्बश करे इनके घरों में, जो अपने घरों से हमें देख रहे हैं, कहीं से भी देख रहे हैं। पवित्र आत्मा इनकी लाइफ को टच करे। जितने बीमार है सब चंगे हो, दुष्ट आत्मा के सताए हैं आजाद हो जाए यीशु मसीह के नाम में। सब तरह के बंधन और बीमारियां, श्राप यीशु के नाम में ऑनलाइन व्यूवर्स की लाइफ से फिनिश हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा इनको छुए अभी राइट नाउ। शैतान की सब युक्तियां, शैतान की सब प्लानिंग्स, शैतान की सब योजनाएं इनकी लाइफ से फिनिश हो यीशु मसीह के नाम में। ये आत्मिक जिंदगी में बढ़े, आत्मिक लाइफ में ग्रो करे। पवित्र आत्मा इनको ऊंचा करे, और जो ग्रेस परमेश्वर आपके भवन में मौजूद है, उस ग्रेस और सामर्थ्य के द्वारा खुदावन मैं इन सबको ब्लेस करता हूँ। ये सब जन ब्लेस्ड हो और बड़ी बड़ी टेस्टिमनीज के साथ खड़े हो यीशु के नाम में। आमीन आमीन। सो गॉड ब्लेस यू सबको। खुदावन आप सबको ब्लेस करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। अपनी प्रेयर्स में आप याद रखेंगे चर्च भवन को, अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें कंस्ट्रक्शन के काम जो चल रहे हैं उनको, और जरूर परमेश्वर के किंगडम के लिए खड़े हों, ताकि परमेश्वर का राज्य फैले। जितने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कमेंट्स में, खुदा आप लोगों को भी डबल रीति से ब्लेस करें इन जीसस माइटी नेम, और बड़े बड़े काम परमेश्वर आपसे ले अपने
महिमा के यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो प्रभु आपके साथ है सबके। गॉड ब्लेस यू। एनी टाइम आप आ सकते हैं, चर्च भवन में टीम मौजूद होती है प्रार्थना करने के लिए। कभी भी आपने आना है चर्च में मिलने के लिए, आप इनवाइटेड है। कभी भी आए, प्रेयर लाइन नंबर के ऊपर कॉल करें मिलने के लिए, तो मिला जाएगा, बात सुनी जाएगी, सब चीजें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें लोगों के लिए खड़ा किया है कि हम लोगों के से मिलें, उनके दुखों को सुने और उनके लिए प्रार्थना करें, उनको प्रार्थनाओं में रिमेम्बर रखें, उनके लिए स्पेशल जाएं प्रार्थना में। और यही एक पास्टर की, एक अगुए की, एक खुदा के जन की और दास की ड्यूटी होती है। हालेलुया। तो उस ड्यूटी के लिए मैं हमेशा तैयार रहता हूँ। एनी टाइम आप आए चर्च भवन में, और संडे भी आप सब जन इन्वाइटेड हैं खुदा की उपस्थिति में। मेरा बिलीव है आप सेम नहीं रहेंगे, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो गॉड ब्लेस यू सबको। खुदावंद आप सबको ब्लेस करे। प्रार्थनाओं में याद रखें जो खुदा के काम चल रहे हैं, और मुझे भी प्रार्थनाओं में याद रखें, क्योंकि जरूरी है कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें खुदा के वचन के अनुसार। सो सब जन मुझे प्रार्थनाओं में याद रखना, चर्च भवन को याद रखना। शैतान की प्लानिंग फिनिश हो चुकी है जब से ये नींव डाली है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग उसने सोची थी चर्च भवन निर्माण से पहले कि मैं करूंगा, लेकिन परमेश्वर ने वो सारी प्लानिंग्स फिनिश करके अपनी महिमा के झंडे को ऊंचा किया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। सो और महिमा होगी परमेश्वर की आने वाले दिनों में पवन जोसेफ निस्सिस की ओर से। और मैं हमेशा, मेरे परमेश्वर को मालूम है कि मैं परमेश्वर के कामों के लिए, उसके किंगडम के लिए मैं खड़ा हूँ एनी टाइम परमेश्वर के लोगों के लिए। सो गॉड ब्लेस यू सबको। मिलेंगे हम जल्दी खुदा की उपस्थिति में। मैं आपको अगली अपडेट दूंगा। जो शेड के लिए जिसका लाखों में खर्चा है, आप सब जन जरूर परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े हों, ताकि शेड जो है चर्च भवन में डलने पाए। कम से कम 10-12 लाख का खर्चा है चर्च भवन की शेड का, लेकिन परमेश्वर के लिए कुछ भी नहीं है। हालेलुया। क्योंकि ना तो बल से ना शक्ति से, लेकिन उसकी आत्मा के द्वारा सब कुछ पॉसिबल है, सब कुछ हो सकता है। तो सब जन जरूर प्रार्थनाओं में याद रखेंगे, और मैं भी आपके लिए प्रार्थना करूंगा जितने आप मैसेज कर रहे हैं। खुदाबंद आप सबको ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू। मिलते हैं हम जल्दी, अगली अपडेट में आपको दूंगा, और प्रार्थनाओं में रिमेम्बर रखेंगे आप चर्च भवन को। ठीक है, थैंक यू सबको। गॉड ब्लेस यू।